So in last lecture, F block element group number 1 क्लियर। ग्रुप 1 हमने कंप्लीट किया और उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन और ग्रुप 1 एलिमेंट के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे NaOH, NaCl, Na2CO3 क्लियर एंड बेकिंग सोडा NaCO3 ये डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। So in today's lecture we are going to start with group number 2 quoted as group का group 2 put the heading group 2 elements, that is group 2 element. If we talk about group 2 elements, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. What are the other name of group 2? Anyone? What is the common name of group 2 element? जैसे ग्रुप 1 को हम एल्किली मेटल कहते हैं, उसी तरह से हम ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? दैट इज एल्किलाइन अर्थ मेटल। वेट फॉर 1 सेकंड। Fine, actually device was not connected properly. Now I think it is audible to all. So group 1 को जैसे हम alkali metal कहते हैं, what we call group 2 element? Anyone? Alkali earth metal. Exactly, alkali earth metal, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एल्केलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं और फर्दर ये अर्थ क्रस्ट में हमें पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं। Got it? So if we talk about group 2 element, their other name is alkaline earth metal. Alkaline earth metal. तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो मेटल होंगे बेटा ये मेनली अर्थ क्रस्ट में मिलेंगी और इनके जो कंपाउंड हैं मोस्टली बेसिक होंगे। फाइन, नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। राइट डाउन जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 की जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन होता है। Put it, write down electronic configuration of group 2. Electronic configuration. So can you tell me what is the general electronic configuration of group 2 element? Group 2 का general, exactly, NS2, clear? N cell के S subcell में 2 electron, that is NS2. So if we talk about general configuration, general electronic configuration is NS2. Fine. So if we talk about all the elements, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So जैसे beryllium जो है वो second period का element है. Beryllium is element of second period. So what will be the configuration of beryllium? That is 2s2. Clear? Beryllium का क्या होगा? 2s2. तो second period में 2s2 हो जाएगा। इससे पहले नोबल गैस कौन सी आएगी? Anyone? Helium. Yes, exactly, helium. Very good. क्योंकि नोबल गैसेस की बात करें तो as we know helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. What are their atomic number? Helium का atomic number 2, neon is 10, argon is 18, krypton is 36, xenon 54 and radon 86. क्लियर? इनके जस्ट पिछली जो नोबल गैस है वो हमें कंसीडर करनी होती है। जैसे बेरिलियम की बात करें तो इट इज हीलियम 2s2. नाउ व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम? एनीवन? Helium S2. एग्जैक्टली। अब हीलियम क्यों होगा बेटा? बेरिलियम की जस्ट पिछली वाली नोबल गैस होती है हीलियम। व्हाट इज? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12. 12 से जस्ट बैक साइड, दैट इज नियॉन, नियॉन, तो इट इज नियॉन। थर्ड पीरियड का है इसलिए 3s2.
What about calcium? Calcium is Argon having atomic number 20. Very good. Argon 4s2. This is next. Krypton 5s2. Next one is xenon 6s2, and radium is radon 7s2. Like that. This is the sequence of electronic configuration of alkaline earth metal. Clear? So it is very easy. Just remember the electronic configuration and remember the atomic number of noble gases. तो आपको just पिछली वाली noble gas लिख के उसका outer configuration लिखना है. Then next second property is valence electron and valency. Valence electron and oxidation number. Valence electron and oxidation number. Can you tell me how many valence electrons of alkaline earth metal? 2. Exactly 2. तो जो outermost shell में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही वैलेंस होंगे. जैसे in each case we discussed that they are having 2s2 configuration. Clear? तो जो बाहर वाला सेल होगा, जैसे बेरिलियम में सेकंड सेल आउटर है और उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है. मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे थर्ड सेल आउटर मोस्ट है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से आगे भी हम देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. So if we talk about valence electron, that is 2, and oxidation state. Oxidation number क्या हो जाएगा? They will occupied plus 2 charge. Got it? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. फर्दर मेटल है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा. जैसे एम मेटल की बात करें तो इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन to form divalent ion. Got it? So what was the valency of alkali metal? Alkali metal की क्या थी? Group 1 की 1. Exactly. They are monovalent और group 2 होते हैं divalent. So remember they will always form a divalent ion. Divalent ion. Got it? So that is all about electronic configuration and oxidation number. Next is some more general properties, that is ionization energy, electronegativity, electron gain enthalpy. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन नंबर से हम पहले से भी अवेयर हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ग्रुप 2 का NS2 होता है और ऑब्वियसली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन पे चार्ज +2 होगा. देन नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी. Third property is ionization energy. If we talk about ionization energy, तो क्या ऑर्डर होगा बेटा? टॉप टू बॉटम. What about ionization energy? Decreases. Exactly. टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है और इस ग्रुप में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता. क्लियर? टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन का वैल्यू कम होता रहता है विदाउट एनी एक्सेप्शन. Clear? It increases across the period? Yes, across the period it increases. Down the group it is decreases. Clear? Yes, sir. Ultimately it is related with the size. Size से related है. जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आयोनाइजेशन कम होगी, साइज कम होगी तो आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी. Clear? So if we talk about ionization energy, decreases down the group. So that we also discussed in periodic table. So can you tell me which element of group 2 is having highest ionization energy? The neon?
एग्जैक्टली बेरिलियम नियॉन कहाँ से होगा बेटा, ग्रुप 2 का एलिमेंट बात कर रहा हूँ। Yes, sir. ग्रुप 2 नियॉन किस ग्रुप का है, ग्रुप 18 का। Yes, sir. क्लियर। Sorry. तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। फाइन। कैन यू टेल मी व्हाई वी डू नॉट डिस्कस द रेडियम एलिमेंट? Because it is radioactive. So because it is radio. वेरी गुड। रेडियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। इसी तरह से ग्रुप 1 में कौन सा रेडियो एक्टिव था? Francium. एग्जैक्टली फ्रेंशियम। लास्ट के जो दोनों एलिमेंट हैं ग्रुप 1 और 2 के, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, लास्ट के एलिमेंट। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डर, बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी और जैसे जैसे नीचे आएंगे डिक्रीज होती रहेगी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड दिस इज बेरियम। बेरिलियम की सबसे ज्यादा होती है। एंड वन मोर थिंग, रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसका डिस्कशन नहीं कर सकते। दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब बात करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट and group 2 element, can you tell me whose ionization will be more? Anyone? Very simple, group 1 and group 2 किसका ज्यादा होगा? Group 2 element. एग्जैक्टली ग्रुप 2 का। अभी डिस्कस किया था, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज। क्लियर। तो ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट हैं वो एक्सट्रीम राइट साइड आ रहे हैं, तो राइट साइड आने पे इंक्रीज होती है, तो ग्रुप 2 की 1 से ज्यादा होगी। दैट इज ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन। फाइन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, कंपेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर? इनकी लोकेशंस बता दूं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होती है बेटा, ये तीनों थर्ड The पीरियड। aluminium is the highest and sodium is the lowest. ओके, लेट अस चेक। फाइन, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। देखो, थर्ड पीरियड के हैं, सोडियम इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड एल्यूमिनियम इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13। so it is sodium, magnesium, aluminum. Now this is the location, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, बट ग्रुप 1 का है सोडियम, ग्रुप 2 का मैग्नीशियम और ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम। तो कैन यू टेल मी द करेक्ट ऑर्डर? एनीवन? सोचो क्या होना चाहिए, सबसे कम किसकी होगी? एनीवन? whose ionization will be least? As we know, Aluminium. no, that is wrong. See, Sodium. sodium. Okay, that was not audible to me. Just repeat that. Was that sodium? Yes, sir, sodium. Okay, sodium is correct answer. Least की बात करें तो sodium होगा। Very good. कैसे चेक करेंगे बेटा? यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम तो नहीं जाने वाले, बिकॉज वी आर इन सेम पीपल, so we have to go from left to right. So what is exceptional case here? See, वैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, इसका मतलब एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, isn't it clear? तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है आयोनाइजेशन का? एक्सपेक्टेड ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। दिस इज इनकरेक्ट। और एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? मैग्नीशियम जो होता है बेटा, दैट इज फुली फिल्ड। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, दैट इज नियॉन 3s2। तो देखो, नियॉन तो फुल फिल्ड है ही, नोबल गैस, और 3s सबसेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब ये फुली फिल्ड है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सट्रीमली हाई होती है। क्या रीजन होता है? एनीवन? व्हाई आयोनाइजेशन ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इज एक्सट्रीमली हाई? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
So that is the reason behind magnesium is having high ionization than aluminum. Noted? So correct order क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम और सोडियम सबसे कम. दिस इज करेक्ट order. तो ये आप याद रखो, ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है. तो क्लियर है सभी को? तो इसमें आपको पहली बात याद रखनी है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है विदाउट एनी एक्सेप्शन. सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर इज ग्रुप 2 की 1 से ज्यादा होती है, यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. फिर हमने क्वेश्चन देखा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का, तो इसमें हमें ये पता चला कि मैग्नीशियम फुलफिल्ड होने के कारण एल्यूमिनियम से ज्यादा आयोनाइजेशन रखता है. क्लियर? वैसे तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर में एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम इज हैविंग हाई आयोनाइजेशन देन एल्यूमिनियम. बाकी सोडियम अपने प्लेस पे ही रहेगा, सोडियम का अभी भी लीस्ट होगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Fine. Next, number 4 property. Fourth, fifth, very common to us. Fourth is electron affinity and electronegativity. Electron affinity and electronegativity. Tell me what is order of these two properties? What about electron affinity? Top to bottom decreases. Clear? So electron affinity का trend क्या होता है? Top to bottom, that is decreases down the group. So whose electron affinity is most? Anyone? Group 2 में Beryllium. सबसे ज्यादा? Exactly, beryllium. That is decreases down the group. Decreases down the group. तो order हो जाएगा beryllium, magnesium, calcium, strontium, and this is barium. That's it. And what about electronegativity? इसका क्या trend होता है? Increases across the period. Yes, increases across the period, but we are talking about group 2, means group Sir, then में हम बात कर- decreases. Exactly. So it is decreases down the group. Same trend. Decreases down the group. So whose electronegativity is least? Group 2 में सबसे कम किसकी होगी? It would be beryllium or barium. Sir, barium. Exactly. सबसे कम होगी बेरियम की, और मान लो ऑप्शन में रेडियम हो तो रेडियम की सबसे कम होगी, बट क्योंकि रेडियम रेडियो एक्टिव है इसलिए हम उसका डिस्कशन नहीं करते. क्लियर? नोट इट डाउन. Next, some more important properties, that is hydrogen energy and their physical appearance and flame test. Actually, now we are going to discuss the size, sixth property. Sixth property, write down order of size. Size के order की बात करें तो size, everyone knows, increases down the group. So which is having higher atomic radii. Shielding effect का order. Shielding effect क्या होता है? Top to bottom increase करता है. Clear? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो नीचे आने पे देखो सेल इंक्रीज होते हैं, पहले में एक सेल फिर 2 सेल, इस तरह से शील्डिंग जो है वो बढ़ती रहती है, लाइक दैट. तो साइज जो है दैट इज वेरी कॉमन टू अस, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विदाउट एनी एक्सेप्शन, increases down the group. So tell me which is the smallest element of group 2? सबसे छोटा Beryllium. कौन होगा? बेरिलियम. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. तो इनसे हम पहले भी अवेयर हैं. ओके, ये प्रॉपर्टीज हमने
पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस की। नाउ व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज which are new for us, that is their appearance. Clear? If we talk about their appearance, they are having silvery white luster. Silvery white luster means इनका जो appearance होगा, इनका जो surface होगा, that is something silver color. ठीक है? Silvery white luster. They are softer matter. They are soft metal. Noted? इनका जो luster होता है, that is silvery white. Clear? What is meaning of silvery white? That is something like जो चांदी का कलर होता है. That is shining and something white is color. Fine. Next property, they are soft but relatively harder than alkali metal. But relatively harder than alkali metal. वैसे तो ये सॉफ्ट होंगे बट एल्कली मेटल से क्या होंगे, हार्ड होंगे. रोटेट, जैसे आपको पूछा जाए which is hard out of sodium and magnesium, what will be the answer? Magnesium. मैग्नीशियम. Magnesium. Clear? वैसे ओवरऑल ये सॉफ्ट होते हैं बट एज कंपेयर टू ग्रुप 1 दे आर हार्डर. नेक्स्ट बेटा, इनके जो लस्टर है, इनका कलर हमने देखा दैट इज सिल्वरी वाइट, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, दैट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. ये ग्रे कलर के होते हैं. बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, these are having grayish color, grayish luster और grayish color. ये सिल्वरी वाइट नहीं. रोटेट, तो सिल्वरी वाइट कौन होगा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. फाइन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले भी डिस्कस की है, दैट इज हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी. Hydration enthalpy. Hydration enthalpy. So can you tell me what is meaning of hydration? What come in your mind after the name of hydration? Anyone? Interaction of element with water. Exactly. Interaction of element, any element with water. Got it? Or any compound with water also. तो किसी भी सब्सटेंस का वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज हाइड्रेशन. क्लियर? तो जब हाइड्रेशन होता है बेटा, वहां पे एक स्पेशल टाइप की एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नॉन एज हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्लियर? अब ये हाइड्रेशन कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, इसकी एक सर्टेन कंडीशन होती है. नाउ व्हाट इज दैट कंडीशन? सी, इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रेशन, hydration is directly proportional to charge by size. Charge by size. That means higher the charge, more will be hydration. Larger the size, lesser will be hydration. इसका मतलब चार्ज के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, हाइड्रेशन इंक्रीज होगा. जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, हाइड्रेशन डिक्रीज होगा. क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्रुप 2 आयंस की. ग्रुप 2 के जो आयंस है, इनकी बात करें तो दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड दिस इज बेरियम +2. फाइन. तो बेटा चार्ज सभी के सेम है. ओवरऑल चार्ज इज +2 ऑन ईच आयन. दैट मींस चार्ज इज नॉट अ सेपरेटिंग फैक्टर. चार्ज के हिसाब से देखें तो सभी का हाइड्रेशन सेम होना चाहिए, बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर? साइज. क्लियर? So can you tell me out of these 5 ions whose hydration will be the most? Beryllium. Exactly, बेरिलियम. इसका रीजन क्या होगा? बेरिलियम की जो साइज होती है वो छोटी होती है. क्लियर? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन.
और सबसे लीस्ट हाइड्रेशन किसका होगा? बेरियम का। गॉट इट? क्योंकि बेरियम की जो साइज है वो सबसे ज्यादा है, साइज ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन का एक्सटेंट कम होगा। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट बेरिलियम, बेरिलियम के केस में हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा, लाइक दैट। मैग्नीशियम के केस में एज कंपेयर टू बेरिलियम इट वुड बी लेस। कैल्शियम में मैग्नीशियम से कम, स्ट्रोंशियम में और भी कम, और बेरियम में सबसे कम। गॉट इट? इसके बाद एक सिंपल से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ट्राई दैट क्वेश्चन, राइट डाउन। कंपेयर ionic radii of group 2 ion in aqueous state and in gaseous state। ये हमने ग्रुप 1 के लिए भी ट्राई किया। ट्राई दिस क्वेश्चन। सर एक्वस स्टेट में बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी और बेरियम की सबसे कम, और गैसियस स्टेट में बेरिलियम की सबसे कम होगी और बेरियम की सबसे ज्यादा। वेरी गुड। इसका रीजन क्या होगा बेटा? एक्वस में ये एबनॉर्मल ट्रेंड क्यों आया? क्योंकि बेरिलियम की हाइड्रेशन ज्यादा है। एग्जैक्टली, बेरिलियम जो है वो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रेशन की वजह से ये जो साइज है ये क्या हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है। क्लियर है सभी को? आदित्य, अगम एंड सुवनी, इज इट क्लियर कि एक्वस और गैसियस स्टेट में क्या डिफरेंस आता है? क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो बेटा गैसियस स्टेट के अंदर वही होगा जो हम नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं। गैसियस स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट में टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर दो, दैट इज बेरिलियम सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, और सबसे बड़ा होगा बेरियम, दैट इज Ba+2। क्लियर? बट एक्वस स्टेट में क्या होता है? हाइड्रेशन, एंड एज वी नो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका हुआ? बेरिलियम का। तो एक्वस स्टेट में ये ऑर्डर डिफरेंट हो जाए। वी टॉक अबाउट एक्वस स्टेट, बेरिलियम इस बार सबसे बड़ा होगा, मैग्नीशियम छोटा, और बेरियम सबसे छोटा, स्ट्रोंशियम, एंड दिस इज बेरियम। तो ऑर्डर इज रिवर्स। गॉट इट? अब बात करेंगे इनके फ्लेम टेस्ट की। तो एनी डाउट अप टू दिस? आदित्य, अगम एंड सुवनी, नो सर। इन प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट? चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लेम टेस्ट। अच्छा, फ्लेम टेस्ट की बात करें तो ये हमने ग्रुप 1 में भी कवर किया था। हु विल टेल मी व्हाट इज फ्लेम टेस्ट? एनीवन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लेम टेस्ट? वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट डाउन फ्लेम टेस्ट। अच्छा, किसी को याद नहीं आ रहा? याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। क्या था फ्लेम टेस्ट? इसकी मैंने एक कोटा फैक्ट्री से इसको कनेक्ट करके भी बताया था। एक कोटा फैक्ट्री जो वेब सीरीज है उससे कनेक्ट करके भी बताया था, उसमें इसका रेफरेंस आता है कि जब भी आप एस लो के एलिमेंट को हीट करते हो, किसी फ्लेम से बर्न करते हो, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलते हैं। क्लियर? एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक कलर will help us to identify a particular element। जैसे लिथियम जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर कलर देता है, सोडियम एक पर्टिकुलर कलर देता है, और इसी को हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट। गॉट इट? तो
किसी को याद है सोडियम का कलर क्या था? एनीवन? गोल्डन येलो। Exactly, golden yellow. What was the color of cesium? Cesium is having blue color. Clear? तो जिस तरह से हमने एल्कली मेटल्स के कलर याद किए थे, उसी तरह से हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के कलर डिस्कस करेंगे. Got it? And remember, यहाँ पे जो हम बर्निंग करेंगे, देखें, let's suppose this is group 2 element. This is alkaline earth metal. Alkaline earth metal. इसको जो हम फ्लेम से बर्न करेंगे, if we talk about this flame is oxidative flame. This is very important. ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि जो फ्लेम टेस्ट होता है एथलोक एलिमेंट का, उसमें कौन सी फ्लेम काम में लेते हैं? दैट इज ऑक्सीडेटिव फ्लेम. दो तरह की फ्लेम होती है, ऑक्सीडेटिव फ्लेम और एक होती है रिडक्टिव फ्लेम. रिडक्टिव फ्लेम जो होती है बेटा वो रिडक्शन कराती है और ऑक्सीडेटिव फ्लेम ऑक्सीडेशन कराती है. डन? तो इसको नोट करेंगे, राइट डाउन. when alkaline earth metal burns with oxidative flame, they give characteristic color. Burns with oxidative flame, they give characteristic color. This is known as flame test. Clear? तो मीनिंग पता चला व्हाट इज फ्लेम टेस्ट. जब भी हम एल्कलाइन अर्थ मेटल को ऑक्सीडेटिव फ्लेम के साथ बर्न करेंगे तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाई देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर मेटल. फाइन. अब हमें कलर याद रखना है कि किस केस में कौन कौन सा कलर याद आता है. देन सबसे पहले बात करेंगे बेटा बेरिलियम की, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. So if we talk about beryllium and magnesium, these are very special, क्योंकि ये कोई भी कलर इमिट नहीं करते. क्लियर? तो डायरेक्टली यदि क्वेश्चन में पूछा जाए विच मेटल डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट. क्लियर? So if we talk about beryllium and magnesium, they do not give फ्लेम टेस्ट. ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं. कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम देता है बेटा ब्रिक रेड कलर. ब्रिक रेड मीन्स जो ईंट का कलर होता है, ब्रिक का जो कलर होता है उसी टाइप का रेडिश कलर. स्ट्रोंशियम की बात करें इट गिव्स क्रिम्सन कलर. स्ट्रोंशियम क्या कलर देता है? क्रिम्सन कलर. नेक्स्ट एंड लास्ट बेरियम गिव्स एप्पल ग्रीन. बेरियम गिव्स एप्पल ग्रीन. गॉट इट? तो यहाँ पे उतना कंफ्यूजन नहीं होते हैं. बेरिलियम मैग्नीशियम तो कोई भी कलर नहीं देंगे. फिर कैल्शियम क्या देता है? ब्रिक रेड कलर. नेक्स्ट बेरियम की स्ट्रोंशियम की बात करें तो स्ट्रोंशियम देता है क्रिम्सन कलर और बेरियम देता है बेटा एप्पल ग्रीन. गॉट इट? नेक्स्ट now we are going to discuss chemical reaction and reactivity order. Chemical reaction. Fine. Next is chemical reaction. तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर. राइट डाउन रिएक्टिविटी ऑर्डर. तो कैन यू टेल मी टॉप टू बॉटम आने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज? एनीवन? ग्रुप 1 में ऑर्डर क्या था?
ग्रुप 1 एलिमेंट की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रुप 2 एलिमेंट की भी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती। क्लियर? तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। Got it? Can you relate it? How ionization is related with reactivity? क्योंकि आयोनाइजेशन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा, isn't it? तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप के अंदर तो आयोनाइजेशन कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है और रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो कैन यू सजेस्ट विच एलिमेंट, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव among Barium. group 2? Exactly, barium. Exactly, barium. Clear? रेडियम तो रेडियोएक्टिव है, इसका मतलब बेरियम इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड दिस इज बेरियम। बेरियम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। एयर से रिएक्टिविटी का मतलब होता है बेटा, कैन यू सजेस्ट विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस इन एयर? एयर के अंदर एग्जैक्टली नाइट्रोजन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन। क्लियर? तो एयर से रिएक्टिविटी का मतलब होता है हमें किसके साथ रिएक्टिविटी चेक करनी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? देखो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा। ऑल एलिमेंट, all group 2 element form oxide with oxygen. Oxide with oxygen. अच्छा, ये ग्रुप 1 में वैलिड नहीं था, isn't it? ग्रुप 1 में ऑक्साइड किस एलिमेंट ने बनाई थी? एनीवन? Lithium. सर लिथियम। लिथियम। और पेरोक्साइड किसने बनाई? Sodium. एग्जैक्टली, सोडियम। और सुपर ऑक्साइड लास्ट के 3 एलिमेंट, दैट इज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्लियर? तो यहाँ पे इतना कोई जो कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, सिंपली याद रखना सभी ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नाउ ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे M+O2 विल गिव यू MO, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि ग्रुप 2 पे चार्ज क्या होता है बेटा? +2 और ऑक्सीजन पे होता है -2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपली MO बन जाएगी। डन? तो इसका मतलब ग्रुप 2 में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सभी एलिमेंट जो हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट हायर एलिमेंट, जैसे हम बात करें बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये जो एलिमेंट हैं ये पेरोक्साइड भी बनाते हैं, फॉर्म्स पेरोक्साइड आल्सो। तो ये ऑक्साइड तो बनाएंगे ही, बट यदि इनको और ऑक्सीजन मिल गई तो ये पेरोक्साइड बना देंगे। क्लियर? नोट इट डाउन। एस लोग के क्लेम टेस्ट के कलर याद हो नहीं हो, आईपीएल का शेड्यूल सबको याद हो गया होगा। तो कल किसका मुकाबला है ये तो सबको पता है। आदित्य, आप देखते हो क्रिकेट? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, कि सर से छुपाने के लिए। विच टीम यू सपोर्ट? सर सीएसके। अरे वाह, क्या बात है। हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी चेन्नई को सपोर्ट करती है, बहुत बढ़िया। सर चेन्नई एंड आरसीबी, मतलब इन दो टीम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सर मेरी तरफ से सर आरसीबी एंड मुंबई इंडियंस। ओके,
त्रिवेणी आप देखते हो क्रिकेट? Yes, sir. ओके, which team you support? Sir, RCB. Okay, RCB. I think that is because of Virat Kohli, the Yes, greatest sir. player, and AB de Villiers. Okay. सर बट तो बट आरसीबी ने आज तक कोई भी सर वो नहीं जीता है, बट कोई भी ट्रॉफी नहीं ली है। हाँ, आरसीबी ने ट्रॉफी नहीं जीती है, बट आरसीबी के कैप्टन ने जरूर जीती है, दैट इज 2011 वर्ल्ड कप, इज वन ऑफ द Yes. इम्पोर्टेंट की प्लेयर ऑफ इंडिया। फाइन, so can you suggest whom I support? Rajasthan Royals. Yes, Rajasthan Royals. Very good. So you can assume what is the reason behind that. I support RR जब से IPL start हुआ, and even I witnessed the first inaugural edition of IPL, and that was won by RR. Clear? And other than that, टीम वाइज जो टीम कमजोर है, राजस्थान के अलावा जो टीम कमजोर होती है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जो टीम हार रही होती है, मीन्स अदर देन राजस्थान, जिसका मैच चल रहा होता है, जो टीम हार रही होती है उसको सपोर्ट करते हैं, वीकर टीम। एंड प्लेयर वाइज वीरू इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर whom I enjoy to watch. Clear? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब तो उनका टाइम चला गया है। चलिए ठीक, नेक्स्ट, तो हमने सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस किया। रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन देखी, उसके बाद नाइट्रोजन। तो हमें ग्रुप 1 के साथ रिलेट करते चलना, इजंट इट? कैन यू सजेस्ट कि ग्रुप 1 में ऐसा कौन सा एलिमेंट था जो नाइट्रोजन से रिएक्ट किया? Lithium. एग्जैक्टली, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट था जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, एंड दैट इज लिथियम। बट ग्रुप 2 के साथ ऐसा नहीं। ऑल एलिमेंट्स आर रिएक्टिव एंड रिएक्टिव एनफ टू रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। तो सभी के सभी नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। सी, इफ वी टॉक अबाउट एम, ये हमने एक जनरल मेटल लिया है दैट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 2। इट विल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट। कैन यू सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ दिस नाइट्राइट? दोनों के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। MnO। सी, ग्रुप 2 आयंस पे चार्ज क्या होता है? +2, और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है? -3। नाइट्रोजन पे -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या बन जाएगा? Mc(N2). तो इट इज M3N2। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको Mg मिलता, Mg + N2, व्हाट विल बी द कंपाउंड? वेरी सिंपल, M की जगह exactly Mg3N2. So depending on the element we can name these nitrite. जैसे मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह से जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्राइड। एंड इसी तरह से बाकी के जो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो वो अपने करेस्पॉन्डिंग नाइट्राइड बना देंगे। देन आप लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट will react with nitrogen to form corresponding nitrite. तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, वहां पे हमें याद रखने की जरूरत पड़ी, सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। डन। नेक्स्ट now we are going to discuss the reactivity towards water. This is one of the important reactivity towards water. फाइन, वाटर से रिएक्टिविटी। बेटा वाटर से रिएक्टिविटी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करती है, क्योंकि
कुछ मेटल ऐसे हैं जो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे और कुछ मेटल ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। क्लियर? So if we talk about all the elements reactivity, beryllium, magnesium, calcium, strontium and this is barium. तो अभी जो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाया था उसमें सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है? एनीवन? बेरिलियम। बेरियम। क्लियर? टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा था तो बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फाइन। तो ये तीनों इतने रिएक्टिव हैं कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर? दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी से रिएक्शन हो जाएगी, मीन्स ज्यादा रिएक्टिव। गॉट इट? दैट मीन्स मोर रिएक्टिव। और ऊपर के दो इतने कम रिएक्टिव हैं कि इनकी रिएक्शन के लिए हमें स्टीम काम में लेनी पड़ेगी, भाप काम में लेनी पड़ेगी। गॉट इट? दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके लिए हमें स्टीम काम में लेनी पड़ती है। दैट मीन्स रिएक्ट विथ स्टीम, रिएक्ट विथ स्टीम। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर अच्छे से याद रखना है। ओवरऑल देखें तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती हैं। लास्ट के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं और फर्स्ट के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन के लिए हमें स्टीम काम में लेनी पड़ती है। अब रिएक्शन कैसे होगी? M plus H2O will give you MOH whole twice plus hydrogen gas. Got it? M plus H2O will form MOH whole twice by releasing hydrogen gas. Just say, for example, if somebody asks you to react this barium with H2O, what will be the product? That is barium hydroxide. M की जगह हमने Ba ले लिया, it is barium hydroxide plus hydrogen. Note it down. देखा सभी ने? Any Yes, sir. doubt up to this? Any doubt up to this? So in today's lecture, what we covered, we started with group 2 element. Group 2 की हमने general properties discuss की. General properties में हमने size, ionization, electronegativity, affinity, इन सब का order देखा और उसके बाद हमने इनका जो luster होता है, appearance होता है, वो discuss किया. Clear? Then after we discussed what is flame test and what are the characteristic colors shown by group 2 element. तो group 2 के अंदर हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट के 2 एलिमेंट, फर्स्ट 2 एलिमेंट दैट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये फ्लेम टेस्ट के लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते, कोई भी कलर इमिट नहीं करते, बट लास्ट के 3 एलिमेंट बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, all these 3 emit a characteristic color. So if someone asks you that a group 2 element which shows brick red color, which element it would be? Calcium. Exactly, calcium. Yeah, group 2 का ऐसा एलिमेंट जो ब्रिक रेड कलर देता हो फ्लेम टेस्ट में, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम. ग्रुप 2 एलिमेंट which gives apple green color in flame test, what it Barium. would be? बेरियम. ठीक है, तो बेरियम जो होता है बेटा, एप्पल ग्रीन का मतलब क्या होता है? जैसे यू कैन से एप्पल ग्रीन इज समथिंग रिलेटेड टू येलो कलर,
एप्पल ग्रीन का मतलब जो कच्ची pale सेब yellow. होती है, एग्जैक्टली पेल येलो एंड ग्रीनिश मिक्सचर, ये जो कच्ची सेब होती है दैट इज समथिंग यू कैन से एप्पल ग्रीन. फाइन, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करें. So one or two more properties are remaining that we will discuss in next class. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट. तो जैसे हमने ग्रुप 1 के कंपाउंड डिस्कस किए, उसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं ग्रुप 2 के. आपको याद भी होगा, जैसे लाइम स्टोन, CaCO3, लाइम वाटर, क्विक लाइम एंड सीमेंट. तो इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं. थैंक यू, हैव ए